اپنی بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں انتظار کی گھڑیاں ختم، سوئی گیس کے گھریلو کنیکشن کھل گئے۔ ایل این جی کی بنیاد پر درخواستیں وصول کرنے کا حتمی فیصلہ، صرف آن لائن درخواست جمع کروانے کی اجازت دی گئی۔ پہلے سے جمع شدہ تمام درخواستیں منسوخ کر دی گئیں۔ جمع شدہ ڈیمانڈ نوٹس کو ترجیح دی جائے گی۔ 5 مرلے تک 21,500 اور 10 مرلے کے لیے 23,500 روپے ڈیمانڈ نوٹس مختص کرنے کی تجویز۔ ارجنٹ بنیادوں پر کنیکشن کے لیے 25,000 فیس رکھی جائے گی۔ شہری اب گھروں میں سوئی گیس کنیکشن لگوا سکتے ہیں۔ سوئی گیس کے گھریلو کنیکشن کھل گئے۔ سوئی ناردرن نے ایل این جی بنیاد پر گھریلو صارفین سے درخواستیں وصول کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ صارفین سے کمپنی کی ویب سائٹ پر صرف آن لائن درخواست جمع کروانے کی اجازت دے دی گئی۔ 5 مرلہ تک 21,500 روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ 10 مرلہ کے لیے 23,500 روپے ڈیمانڈ نوٹس مختص کرنے کی تجویز ہے۔ ارجنٹ بنیادوں پر کنیکشن کے لیے 25,000 روپے کا ڈیمانڈ نوٹس دینے کی تجویز دے دی گئی ہے۔ درخواست کے ساتھ قومی شناختی کارڈ، پراپرٹی کی دستاویزات لازمی قرار دے دی گئیں۔ درخواست کے ساتھ ہمسایہ صارف کا گیس بل لگانا بھی لازمی قرار دے دیا گیا۔ پہلے سے جمع ہونے والے ڈیمانڈ نوٹسز پر بھی درخواستیں جمع کی جائیں گی۔ جمع ہونے والے ڈیمانڈ نوٹسز کے صارفین کے لیے علیحدہ لنک دیا گیا۔ جمع شدہ ڈیمانڈ نوٹس کے حامل صارفین کو ترجیحی بنیادوں پر کنیکشن دیا جائے گا۔ درخواست کے تحت صارفین کے کنیکشن کی کیٹیگری قدرتی گیس کے بجائے ایل این جی کر دی جائے گی۔ پہلے سے جمع شدہ تمام درخواستوں کو منسوخ کر دیا گیا۔ باغوں کا شہر ہوگا اب روشن روشن، گلیاں چمکیں گی۔ اسٹریٹ لائٹس لگانے کے منصوبے میں بڑی پیش رفت، 22,000 لائٹس کی 2 شپمنٹ دبئی سے لاہور پہنچ گئی ہیں۔ آئندہ ہفتے سے تنصیب کا باقاعدہ آغاز سمن آباد سے ہوگا۔ راوی، داتا گنج بخش، گلبرگ، نشتر اور شالیمار زون میں لائٹس لگائی جائیں گی۔ تیسرے مرحلے میں عزیز بھٹی، واہگہ، علامہ اقبال ٹاؤن میں لائٹس کی تنصیب ہوگی۔ شہر کی گلیاں روشن ہوں گی۔ شہر میں اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب پر بڑی پیش رفت ہو گئی۔ آئندہ ہفتے سے شہر میں اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا۔ 22,000 لائٹس کی 2 شپمنٹ لاہور پہنچ گئیں۔ اسٹریٹ لائٹس مرحلہ وار مختلف علاقوں میں لگائی جائیں گی۔ اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب کا آغاز سمن آباد ٹاؤن سے ہوگا۔ دوسرے مرحلے میں 5 مزید ٹاؤنز میں اسٹریٹ لائٹس لگائی جائیں گی۔ راوی، داتا گنج بخش، گلبرگ، نشتر اور شالیمار زون میں لائٹس لگائی جائیں گی۔ تیسرے مرحلے میں عزیز بھٹی، واہگہ، علامہ اقبال ٹاؤن میں لائٹس کی تنصیب ہوگی۔ فلپس کمپنی کی لائٹس دبئی سے درآمد کی گئی ہیں۔ نومبر تک کل 88,000 اسٹریٹ لائٹس موصول ہو جائیں گی۔ لیسکو میں خراب سنگل میٹرز تبدیل کرنے کا فیصلہ، کمپنی کے پاس اسٹاک ختم، پرانے میٹرز استعمال ہوں گے۔ خراب نہ ہونے والے میٹرز کو دوبارہ ریجنل سٹورز کے سپرد کیا جائے گا۔ 62,000 کے قریب سنگل فیس میٹرز کو ڈیفیکٹیو کوڈ لگایا گیا ہے۔ تمام دفاتر سے اترنے والے میٹر کی M&T رپورٹس حاصل کی گئیں۔ لاہور الیکٹرک کمپنی کے پاس سنگل فیز میٹرز کا اسٹاک ختم ہونے کی وجہ سے پرانے میٹرز استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کمپنی کے تمام دفاتر سے اترنے والے میٹرز کی M&T رپورٹس حاصل کی گئی ہیں۔ رپورٹس میں خراب نہ ہونے والے میٹرز کو دوبارہ ریجنل اسٹورز کے سپرد کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق ریجنل کے بعد فیلڈ اسٹور سے ERP کے تحت میٹرز کا اجرا کیا جائے گا اور صارفین کے کنیکشن کے لیے پرانے میٹرز نصب کر کے رپورٹ کے مطابق MCO فیڈ ہوگا۔ میٹر چینج آرڈر کے تحت میٹرز پر موجودہ ریڈنگ کے مطابق بلنگ کا آغاز کیا جائے گا۔ لیسکو میں 62,000 کے قریب سنگل فیز میٹرز کو ڈیفیکٹیو کوڈ لگایا گیا ہے۔ LDA کی ناقص پلاننگ، شہریوں نے نئی ٹف ٹائلز واک ویز کو پارکنگ بنا لیا۔ گلبرگ کے متعدد بلاکس میں اربوں کے قیمتی ٹف ٹائلز لگا کر واک ویز بنائے گئے۔ واک ویز پر گاڑیاں پارک ہونا معمول بن گیا ہے۔ موٹر سائیکلوں کے ناجائز سٹینڈز بھی بن گئے۔ LDA کی ناقص پلاننگ، گلبرگ کے متعدد بلاکس پر اربوں کی قیمتی ٹف ٹائلز لگا کر واک ویز شہریوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیے گئے۔ شہریوں نے نئی ٹف ٹائلز واک ویز کو مفت پارکنگ کا ذریعہ بنا لیا۔ واک ویز پر جا بجا گاڑیاں پارک ہونا معمول بن گیا۔ موٹر سائیکلوں کے ناجائز سٹینڈز بھی بن گئے۔ شہریوں نے واک ویز پر پارکنگ کر کے منصوبے کی خوبصورتی متاثر کرنا شروع کر دی۔ LDA نے 3 ارب سے زائد کی مہنگی ٹائلیں لگا کر ایریا اپ لفٹ کیا۔ مزید فنڈز لگا کر مزید سڑکیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے تحت بنائی جا رہی ہیں۔ حال ہی میں لگائی گئی قیمتی ٹائلوں کا رنگ بھی اترنا شروع ہو گیا۔
शहर में प्राइवेट कंपनियां आटा डकार गईं। आटे की महंगे दामों फरोख्त जारी। निजी कंपनियां मौजूदा सूरत हाल से फ़ायदा उठाने में मसरूफ। आटे की तरसील के हवाले से शिकायत सामने आने लगीं। शहर में चिकन गोश्त की कीमत गिर गई। आज कीमत में 14 रुपये कमी, 490 रुपये किलो मुकर्रर। शहर में आटे की तरसील मुतासिर होने लगी। प्राइवेट कंपनियां मौजूदा सूरत हाल से फायदा उठाने लगी। करियाना मर्चेंट्स ने फ्लोर मिल्स पर सप्लाई में ताखीर और कम देने का इल्जाम लगाया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से 10 किलोग्राम आटे की कीमत 905 रुपए और 20 किलोग्राम थैले की कीमत 1808 रुपए मुकर्रर की गई। पहले हफ्ते तो आटे की तरसील ठीक रही। करियाना मर्चेंट्स के मुताबिक अब आटे की तरसील में फ्लोर मिल्स ताखीर कर रही हैं। करियाना मर्चेंट्स के पास मतलूबा मिकदार में आटा नहीं आ रहा। करियाना मर्चेंट्स ने कहा, पंजाब हुकूमत आटे की तरसील में ताखीर की वजूहात का जायजा ले और दूर करे। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में चिकन गोश्त की मांग कम और सप्लाई ज्यादा होने से कीमतों में मजीद कमी हो गई। आज ब्रायलर गोश्त की कीमत में 14 रुपए कमी होकर 490 रुपए फी किलो कीमत मुकर्रर की गई। जिंदा ब्रायलर होलसेल 324 रुपए, परचून 338 और फार्म रेट 310 रुपए मुकर्रर है। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का 22वां कॉन्वोकेशन 2017 से 2022 तक के फारिगुल तहसील तलबा को डिग्रियों और मेडल से नवाजा गया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के 22वें कॉन्वोकेशन में सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक की खुसूसी शिरकत। साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज, प्रो वाइस चांसलर USH नादिया नसीम, प्रोफेसर डॉक्टर जवेद अकरम भी शरीक हुए। प्रोफेसर डॉक्टर जवेद अकरम का कहना था, तलबा की मेहनत रंग लाई, मगर असल इम्तिहान मरीजों की दुआओं से शुरू होगा। किसी ने कहा मैंने मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट बनना है, किसी ने कहा इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट बनना है। तो दैट इज व्हाट इट इज। You have to explore yourself that what you are in love with. I always believe that if you are in love with your profession, whatever your profession is, you will perform. साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज बोले, वालदैन की कुर्बानियों का सिला तलबा को अपनी खिदमात से देना होगा। आज आप डॉक्टर बन गए तो हेल्थ प्रोफेशन पैसे कमाने के लिए, अगर आपने ये सोचा कि सिर्फ ये मुझे पेशा पैसा कमाने के लिए, ये पेशा पैसा कमाने के लिए नहीं, ये पेशा इंसान की खिदमत करने के लिए। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था, नौजवान डॉक्टर्स खिदमत को इबादत समझे। पंजाब हुकूमत सेहत के शोबे में इनकलाबी इक़दामात कर रही है। Our clinics on wheels and field hospitals, special arrangements for the dialysis and stroke management, as well as the renovation and upgradation of hospitals. The government of Punjab is also constructing state-of-art hospitals like Cancer Care Treatment and Research Center, cardiac hospitals in Lahore, Sargodha, and will soon expand other cities. कॉन्वोकेशन में नुमाया तलबा को अवार्ड्स दिए गए। वालदैन और तलबा ने इस जिद को अपनी जिंदगी का यादगार लम्हा करार दिया। कैमरा टीम के अब्राफिया रिजवात सिटी 42 लाहौर। प्रॉपर्टी टैक्स पर रियायत के 7 दिन बाकी रह गए। मुलाजमिन की सस्ती से 40% शहरियों को तहाल चालान न मिले। लाहौर में 8.5 लाख यूनिट्स में से 57% को चालान भिजवाए जा सके। पहले 2 माह के 33 अरब रिकवरी हदफ से सिर्फ 1 अरब 36 करोड़ टैक्स वसूल किया गया। प्रॉपर्टी टैक्स पर रियायती 3 माह के सिर्फ 7 दिन रह गए। बड़ी तादाद में प्रॉपर्टी टैक्स दहिंदगान 5% रियायत का फायदा न उठा सके। लाहौर समेत सूबा भर में एक्साइज मुलाजमिन की सुस्ती के बायस 40% शहरियों को तहाल चालान न मिल सके। शहर में भी 8.5 लाख यूनिट्स में से 57% प्रॉपर्टी मालिकान को चालान भिजवाए जा सके। एक्साइज हुकाम के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब भर में 25 लाख के करीब मालिकान से प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया जा रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स दहिंदगान को भिजवाए जाने वाले चालान पर QR कोड मौजूद है। हर चालान की डिलीवरी पर प्रॉपर्टी की तस्वीर भी सिस्टम में अपलोड की जा रही है। पहले 2 माह में 33 अरब रिकवरी के हदफ में सिर्फ 4% 1 अरब 36 करोड़ से ज्यादा वसूल किए गए। नाकिस रिकवरी की वजह से बरवक्त चालान टैक्स दहिंदगान तक ना पहुंच सका। डीजी एक्साइज उमर शेर चट्ठा ने डायरेक्टर्स को चालान बरवक्त भिजवाने की हिदायत जारी कर रखी हैं।
यहाँ पर बात करें ठोकर न्याज बेग पर चिंची रिक्शे की बेहंगम पार्किंग से शहरी परेशान है। रिक्शे की गैर कानूनी पार्किंग से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा होने लगा। रिक्शों की भरमार से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हादसात भी मामूल बन चुके हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे हसनैन औलख से। जी हसनैन। बिल्कुल, शहर में जो तजावजात माफिया है वो बेलगाम है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ठोकर न्याज बेग के मकाम पर और मुल्तान चुंगी को जाने वाला ये रास्ता है। मेरे अकब के जो मनाजर हैं कि यहाँ पर चिंची और ऑटो रिक्शा जो हैं वो रोड के दरमियान में खड़े हैं। दूसरा और जो तीसरा ट्रैक है वो मुकम्मल तौर पर चिंची और ऑटो रिक्शा की नज़र हुआ है। ये सूरत हाल मेरे लेफ़्ट साइड की है। यही सूरत हाल अगर राइट साइड की रायवन रोड वाली की रोड की बात की जाए तो वहाँ पर भी ये सेम ही पिक्चर्स जो हैं वो नज़र आती हैं। ये सेम सूरत हाल है कि जो आमदोरफ्त है वो मुतासिर भी होती है। आने जाने वाले अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और जो ये चिंची वाले ड्राइवर्स हैं या फिर जो ऑटो रिक्शा वाले ड्राइवर हजरात हैं वो रोड के दरमियान में रोक कर सवारियाँ बिठाते हैं। दरमियान में ही अपनी जो चिंची है या ऑटो है उसको रोक कर सवारियों को उतारते हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ जो ट्रैफिक मुतासिर होती है, रवानी में खलल पड़ता है, बल्कि जो हादसात हैं वो भी रूनमा होते हैं। अगर बात की जाए इनके खिलाफ एक्शन लेने की तो जो मुतलका इंतज़ामिया है उनकी जानिब से कोई ख़ास एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं देते। इसके अलावा जो सिटी ट्रैफिक पुलिस है उनकी जानिब से भी ये जो ड्राइवर हजरात हैं उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाती, ना ही इनको हैवी फाइन किए जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो तजावजात की मद में या फिर जो खिलाफ वर्जी है ट्रैफिक कवानीन की वो जूं की तूं है वो होती रहती है। और चूँकि ट्रैफिक वार्डन्स भी मौजूद नहीं होते, इस वजह से ये जो ड्राइवर हजरात हैं इनकी जानिब से खिलाफ वर्जी की जाती है। जो मुसाफिर हैं उनका ये कहना है कि इनकी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अकब के मनाजर भी यही दिखाते हैं कि लाहौर शहर में ट्रैफिक कवानीन की पासदारी जैसी कोई भी चीज़ मौजूद। हसनैन, बहुत शुक्रिया आपका। बोस्तान कॉलोनी कोट लखपत में बुनियादी सहूलियात का फुकदान, टूटी गलियां, सफाई की नाकिस सूरत हाल, स्ट्रीट लाइट्स ना होने से इलाका मकीनों को मुश्किलात, अंधेरे के बायस शहरियों का रात के वक्त बाहर निकलना मुश्किल हो गया। इस हवाले से मजीद बात करेंगे रुमेल इलियास से। जी रुमेल, बताइएगा। बिल्कुल, बोस्तान कॉलोनी कोट लखपत में इंतजामी अदारों की गफलत और अदम तवज्जो के बायस बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। तबाह सड़कें, सफाई सुथराई की नाकस सूरत हाल और स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से यहाँ के जो इलाका मकीन है इनकी ज़िंदगी अजीरन बन चुकी है। शाम होते ही यहाँ गलियों में अंधेरा छा जाता है और अंधेरे के बायस शाम के और रात के औकात में लोगों की जो आमदोरफ्त है वो शदीद मुतासिर है। तबाह सड़क और दीगर जो मसाइल हैं उन पर भी लोग शिकवा कर रहे हैं, जबकि इंतजामी अदारे जो हैं वो शिकायत के बावजूद बोस्तान कॉलोनी कोट लखपत के मकीनों के जो मसाइल हैं वो हल करने में नाकाम है। मकीन यहाँ पर मौजूद भी हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस हवाले से मजीद इनका क्या कहना है। बताएं जी, क्या कहेंगे आप? अंधेरा भी है गलियों में, सफाई सुथराई के भी इंतजामात नहीं है, टूट फूट का शिकार भी हैं गलियाँ, तो कुछ शिकायत किससे करते हैं आप? सुनने वाला है ही कोई नहीं है, किससे करनी है? कहते हैं लोग लेकिन होती नहीं है कोई भी। रात को ये देख आपके सामने अंधेरा है, गलियों में सड़कें टूटी फूटी हैं, पता ही कोई नहीं है किसी को। हाँ जी बिल्कुल, सड़कें टूटी फूटी हैं, अंधेरा है, लोगों की जो आमदरफ्त है रात के औकात में खुसूसन वो मुश्किल हो चुकी है। लोगों को बाहर निकलते हुए खौफ महसूस होता है। इलाका मकीनों का ये कहना है कि हम रात के वक्त अपने बच्चों को लेकर बाहर नहीं निकल सकते हैं। आए रोज़ बोस्तान कॉलोनी कोट लखपत के इलाके में राहजनी की जो वारदातें हैं वो होना मामूल बन चुका है। इसके अलावा यहाँ पर गंदगी के ढेर हैं, तबाह गलियाँ हैं, जिससे इलाके में जो है वो गंदगी और ताफुन का राज है और लोगों को सांस लेने में भी मुश्किलात का सामना है। बोस्तान कॉलोनी कोट लखपत के मकीनों का ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर आला हुकाम नोटिस लें और इनके इलाके में जो बुनियादी सहूलियात की फराहमी है इसे यकीनी बनाया जाए। जी रुमेल, बहुत शुक्रिया आपका। सेवन अप फाटक के अतराफ की आबादी पीने के साफ पानी की सहूलत से महरूम। सेवन अप फाटक के करीब लगा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अदम तवज्जो का शिकार है। गुज़श्ता 2.5 साल से फिल्ट्रेशन प्लांट की हालत इंतहाई अबतर है। इलाका मकीनों की जानिब से ये बताया गया, जबकि फिल्ट्रेशन प्लांट के नल के नशे के आदी अफराद उतार कर ले गए हैं। मज़ीद क्या कहना है जानते हैं आदिया नासिर। जी आदिया। बिल्कुल, शहर में कुछ फिल्ट्रेशन प्लांट ताहाल इंतज़ामिया की तवज्जो के मुंतज़िर हैं। उन्हीं में इस वक्त 7 अप फाटक के करीब वाक़ जो फिल्ट्रेशन प्लांट है उस पर हम मौजूद हैं और उसकी सूरत हाल भी दीगर फिल्टर प्लांट्स की तरह ही है। इलाके के लोग जो है वो पीने के साफ़ पानी की सहूलत से महरूम हैं। बताया जा रहा है कि गुज़श्ता तकरीबन 2.5 साल से इस फिल्ट्रेशन प्लांट पर जो है वो तवज्जो नहीं दी गई। बीच में जो है
कुछ 6 माह कबल चंद रोज़ के लिए इस फिल्ट्रेशन प्लांट को चालू किया गया था, लेकिन उसके बाद से फिर से बंद है। उसकी बड़ी वजह यह है कि इसके अतराफ़ में गंदगी गलाज़त के ढेर हैं जिनसे ताफ़ुन उठ रहा है, और अगर ये फिल्ट्रेशन प्लांट इसका स्टार्ट या आगाज़ हो भी जाता है तो भी बहुत सारे वबाई अमराज की वजह बन सकता है, क्योंकि फिल्ट्रेशन प्लांट में पीने का पानी होता है, साफ़ पानी होता है, लेकिन अगर अतराफ़ में गंदगी गलाज़त होगी तो डेफिनेटली जरासीम जो हैं वो मज़ीद उस पानी को ख़राब करेंगे। इलाका मकीनों का बताना है कि हुकाम बाला इससे आगाह हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो वो ख़ास तवज्जो नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से पानी या तो दूर से भर कर लाते हैं या फिर जो है वो ख़रीद कर पीने पर मजबूर हैं। और यही मुतालबा किया जा रहा है कि इस फिल्ट्रेशन प्लांट पर एक मरतबा फिर से हुकूमत को तवज्जो देने की ज़रूरत है, ताकि पानी जो है वो आ सके और इलाका मकीन पीने के साफ पानी की सहूलत से महजूज हो सके। जी ठीक है आदिया, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला मरीम नवाज से पाक सुजुकी के एमडी हिरोशी की मुलाकात हुई है। सैलाब मुतासरीन के लिए 30 मिलियन रुपए का अतिया दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से पाक सुजुकी के मैनेजिंग डायरेक्टर हिरोशी ने मुलाकात की। इस मौके पर पाक सुजुकी के एमडी ने सैलाब मुतासरीन के लिए 30 मिलियन रुपए का चेक वज़ीर आला को पेश किया। वफ़द में जनरल मैनेजर इखलाक अहमद विर्क, सैयद वजाहत और मोहम्मद ईशान भी शामिल थे। पाक सुजुकी के आला सतह वफ़द ने पंजाब हुकूमत के रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन को सराहते हुए वज़ीर आला और उनकी टीम को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला ने इस अज़म का इजहार किया कि आइंदा सैलाब से कबल ही हिफाजती इंतजामात यकीनी बनाए जाएंगे। राना सिकंदर हयात के जुम्मे को तमाम स्कूल्स में HPV वैक्सीनेशन डे मनाने की हिदायत। सूबाई वज़रा इमरान नज़ीर और सिकंदर हयात के ज़ेर सदारत इजलास हुआ। ख़वातीन को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए प्रोग्राम शुरू करने का जायज़ा लिया गया। सूबाई वज़रा ख्वाजा इमरान नज़ीर और राना सिकंदर हयात के ज़ेर सदारत महकमा सेहत और आबादी में अहम इजलास हुआ। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा, मुल्क की तारीख में पहली मरतबा ख़वातीन को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए बाकायदा प्रोग्राम शुरू किया गया है। सुबह भर के बच्चों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीनेशन की जा रही है। इस मुहिम को मुस्तकिल EPI का हिस्सा बनाया जा रहा है। उम्र की हद 9 से 15 साल है। आइंदा के लिए इस मुहिम के लिए एज ब्रैकेट सिर्फ 9 साल होगी। वज़ीर तालीम ने जुमे को सुबह के तमाम स्कूल्स में HPV वैक्सीनेशन डे मनाने की हिदायत जारी की। सूबाई वज़रा ने कहा, 8 मिलियन बच्चियों की वैक्सीनेशन का हदफ हर सूरत हासिल किया जाएगा। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी का म्यू अस्पताल का दौरा, ज़ेर इलाज स्टेज अदाकार लकी डेयर की आयादत की। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी ने लकी डेयर के अहले खाना से भी मुलाकात की। इस मौके पर म्यू अस्पताल के MS डॉक्टर अब्दुल मुदब्बर भी मौजूद थे। सूबाई वज़ीर ने डॉक्टर्स को हिदायत की कि लकी डेयर को बेहतरीन तिबी सहूलियात फ्राहम की जाएँ, उनके इलाज में किसी किस्म की कोताही न बरती जाए। ख्वाजा सलमान रफ़ी का कहना था कि हुकूमत फनकारों को कदर की निगाह से देखती है, मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ी है। लकी डेयर की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। अब यहाँ पर बात करेंगे LDA सिटी में प्लॉट मालिकान को प्लॉट्स के पोजेशन लेटर तकसीम करने की तकरीब। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन, वाइस चेयरमैन LDA मियां मरगूब अहमद, DG ताहिर फारूक ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। जिनाह सेक्टर के A1, B1, H और L ब्लॉक्स के प्लॉट मालिकान को पोजेशन लेटर्स दिए गए। LDA सिटी स्कीम के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में प्लॉट मालकान को पोजेशन लेटर्स देने की तकरीब का इनेकाद किया गया। सूबाई वजीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बिलाल यासीन ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। वाइस चेयरमैन LDA मियां मरगूब अहमद और DG LDA ताहिर फारूक भी मौजूद थे। आज हमने 3000 लोगों को यहाँ पे उनको पोजेशन दिया है और आने वाले 2 से 3 महीनों में और 3000 लोगों को हम पोजेशन देंगे। मीनिंग देयर बाय के 2 से 3 महीने बाद 10,000 लोग उनको पोजेशन मिल चुका होगा और यहाँ पे अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। जिना सेक्टर के A1, B1, H और L ब्लॉक्स के प्लॉट मालकान को पोजेशन लेटर्स जारी किए गए। तकरीब में अलॉटीज और डेवलपमेंट पार्टनर्स समेत LDA के आला अफसरान ने भी शिरकत की। चीफ मिनिस्टर साहिबा की भी बड़ी एक क्लियर डायरेक्शंस हैं कि हम जो पब्लिक सेक्टर में जो हाउसिंग के जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उस पर फोकस करें ताकि लोगों को एक अच्छे अफोर्डेबल घर मिल सके और लोग इसको ये एक बेसिक नेसेसिटी है। उस सिलसिले में काफ़ी ये चीज़ें चल रही हैं और हम शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के। आज हम सब एक टीम की हैसियत से अपना अपना शेयर हिस्सा डाल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम इस शहर को खूब से खूबतर बनाएं, खूबसूरत बनाएं और लोगों के लिए जो है हम इसको एक अंदर आसानियां पैदा करें। तकरीब में एडिशनल DG, चीफ इंजीनियर LDA, चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग, चीफ टाउन प्लानर, डायरेक्टर LDA सिटी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर और मुतलका अफसरान भी मौजूद थे। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा अरबाज खान, सिटी 42।
PP 163 ग्रीन टाउन में पीपल्स पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की खासूसी शिरकत। पीपल्स पार्टी कायदीन और जेलों की बड़ी तादाद शरीक हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सालगिरह का केक काटा गया। ग्रीन टाउन इरिगेशन सोसाइटी में पीपल्स पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद। टिकट होल्डर PP 163 मोहम्मद फयाज भट्टी की जानिब से एहतमाम किया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पंडाल पहुंचने पर गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का पुरतपाक इस्तकबाल। एडिशनल जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी जुल्फिकार अली बदर, सीनियर रहनुमा चौधरी असलम गिल शरीक हुए। टिकट होल्डर PP 162 मलिक मंजर अब्बास खोखर, अमजद गोल्डन समेत दीगर मकामी कायदीन और जालों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फयाज भट्टी ने मेहमानों की दस्तारबंदी की। मोहम्मद फयाज भट्टी ने गवर्नर पंजाब को हल्के के मसाइल बारे आगाह किया। जहाँ जिस फाटक से गवर्नर साहब आप गुजर के आए हैं, अब तो वहाँ पे रूल लगा हुआ था, अब आसानी से आ गए। यहाँ पे लोग 2-2 घंटे खड़े रहते हैं इस रेलवे फाटक पे। सुबह बच्चों ने स्कूल 8 बजे जाना होता है, वो 6 बजे निकल जाते हैं कि अगर हम 7:15 निकले, स्कूल का रास्ता 15 मिनट का है, लेकिन वो ये समझते हैं कि अगर हम 7:15 निकले और फाटक बंद हो गया तो हम वहां पहुंच नहीं सकेंगे। अगर वो पहले वाला जो आपको रास्ता बताया है वो खुल जाए तो हमारा ये मसला हल हो सकता है। गवर्नर सलीम हैदर ने कामयाब वर्कर्स कन्वेंशन के इनेकाद पर फयाज भट्टी और उनकी टीम को मुबारकबाद दी। कहा, लाहौर समेत पंजाब भर में पीपल्स पार्टी बहाल होने जा रही है। जब मैं निकल रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ, किसी मोहल्ले में, गली में, कोने में, किसी रेड़ी पे, किसी थड़े पे, किसी फुटपाथ पे आप मुझे बुलाएं, मैं आने के लिए हाजिर हूँ। उस फुटपाथ पे आपके साथ बैठने के लिए हाजिर हूँ। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने वर्कर्स कन्वेंशन के शुरका को गवर्नर हाउस में 8 अक्टूबर को महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिरकत की दावत दी। रुमेल इलियास, सिटी 42। अल्फाज सोसाइटी में सीवरेज का काम शुरू करवाने पर तकरीब का एहतमाम किया गया। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मुल्क खोखर, MP मलिक इरफान शफीक खोखर ने बतौर मेहमान खासूसी शिरकत की। तकरीब में कोऑर्डिनेटर वासा फैसल, मलिक अशरफ खोखर समेत सोसाइटी मेंबरान ने शिरकत की। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मुल्क खोखर ने कहा, हमारी जिम्मेदारी है कि आवाम को दरपेश मसाइल दूर करें। मुस्लिम लीग नून हमेशा से आवाम के साथ खड़ी रही है। कायद की ज़ेर निगरानी पाकिस्तान और पंजाब तरक्की की राह पर गामजन है। वज़ीर आला के मुआवने ख़ुसूसी ज़ीशान मलिक का PP 159 में निस्तर टाउन कमाहा और अटारी का दौरा। मसीही बरादरी के रहनुमाओं से मुलाकात, मसाइल सुने। निस्तर टाउन में मॉडल बाजार बनाने की भी खुशखबरी सुनाई। वज़ीर आला के मुआवने ख़ुसूसी ज़ीशान मलिक ने रेडी बानों का दरीना मुतालिबा पूरा करते हुए निस्तर टाउन में मॉडल बाजार की तर्ज पर मखसूस रेडियाँ लगवाईं। ज़ीशान मलिक ने कहा, मुस्तक़बिल करीब में इस बाजार को बाकायदा मॉडल बाजार में तब्दील किया जाएगा। रेडी बानों ने वज़ीर आला पंजाब के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया। ज़ीशान मलिक ने अपने दौरे के दौरान मसीही बरादरी के रहनुमाओं से मुलाकात की, उनके मसाइल सुने। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मसीही कब्रिस्तान के लिए मुख्तस ख़ुसूसी अराज़ी बारे आगाह किया। मसीही बरादरी ने इस दरीना मुतालबे की तकमील पर वज़ीर आला मरीम नवाज़ का शुक्रिया अदा किया। ज़ीशान मलिक ने अपने दौरे के दौरान कमाहा और अटारी में जारी तरक्याती मनसूबों पर काम की रफ्तार का भी जायज़ा लिया। शेफ्स एसोसिएशन और नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मेंबरशिप अवार्ड सेरेमनी और हल्फ बाजारी की तकरीब। कॉलेज ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट कोथम के CEO अहमद शफीक ने शुरका से खिताब किया। शुरका ने शेफ्स एसोसिएशन की काविशों को सराहा। अलहमरा हाल में शेफ्स एसोसिएशन पाकिस्तान की नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरशिप अवार्ड सेरेमनी और हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक्कद हुई। मियां शाहिद महमूद मोहम्मद रईस मेंबर मुंतखब हुए। मोहम्मद रजाक, सादिक सुहेल, आमिर इकबाल, अब्दुल हादी, साकिब जहांगीर, अरशद अली समेत तेगर भी मेंबर मुंतखब हुए। CEO कॉलेज ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट कोथम और प्रेसिडेंट CAP अहमद शफीक का कहना था, ये एसोसिएशन शेफ्स की फलाह के लिए काम कर रही है और करती रहेगी। नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं अक्रॉस पाकिस्तान, आज उन्होंने यहाँ पे ओथ लिया है और ओथ जो हमारे सरपरस्त आला हैं वकार इलियास खान साहब, उन्होंने उनसे ओथ लिया है। और इसके बाद अब हमारा अगला प्रोसेस है कि जो ऑफिस बेयरर्स हैं, कि जो हमारे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और बाकी सारी डेजिग्नेशंस हैं, ये लोग अब फर्दर इलेक्ट करेंगे उन लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान को दुनिया में और पाकिस्तान में रिप्रेजेंट करना है। नौ मुंतखब मेंबरान का नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी से एतमाद पर इजहार तशक्कुर, अज़म जाहिर किया कि वो मुल्क में शेफ प्रोफेशन के फ़रोग, आलमी सतह पर मुल्की नुमाइंदगी के लिए भरपूर खिदमात अंजाम देंगे। आज जो मेरी सर्टिफिकेशन है और मेंबरशिप है
शेफ्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की, उसमें मेरा रोल इस तरह फ़ायदेमंद होगा पाकिस्तानी कम्युनिटी को कि मेरे पास ना सिर्फ बाहर की पढ़ाई है लेकिन बाहर के काम का एक्सपोजर भी बहुत है। बहुत खुशी हुई, हम पाकिस्तान अपने मुल्क के नेशनल शेफ़ एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के नेशनल लेवल पे हम कमेटी मेंबर्स बने हैं, जिसमें हम डिफरेंट किस्म के डिसीजन और ऐसी ग्रोथ के फैसले कर सकेंगे। ये बहुत बड़ा दिन था हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह कि हम नेशनल कमेटी के वो जो खुशकिस्मत उनमें एक मैं भी हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ा दिन है हमारे, ख़ास करके ये सफ़ेद वर्दी के लिए जिसके लिए हम 20-25 साल मेहनत किए और आज उसका अवार्ड मिला अल्हम्दुलिल्लाह। दौरान तकरीब एसोसिएशन के सदर अहमद शफीक समेत दीगर मेंबरान ने हलफ लिया। कैमरामैन साकिब भट्ट के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की पुलिस मुलाजमीन और उनके अहले खाना से मुलाकात हुई। आईजी पंजाब ने पुलिस मुलाजमीन के मसाइल सुने, फौरी रिलीफ के लिए अहकाम जारी किए। एएसआई इमदाद अली की तिब्बी माली इमदाद की दरख्वास्त पर एडिशनल आईजी वेलफेयर एंड फाइनेंस को रिलीफ की हिदायत की। लेडी कांस्टेबल यास्मीन कंवल की ट्रांसफर पोस्टिंग की दरख्वास्त पर डीआईजी एस्टेब्लिशमेंट 2 को रिलीफ की हिदायत जारी की है। ड्राइवर कांस्टेबल सैफुल्लाह उमर हयात के सर्विस स्टेटस की दरख्वास्त पर डीआईजी एस्टेब्लिशमेंट 1 को रिलीफ की हिदायत की। इंस्पेक्टर्स मोहम्मद गुलफाम मोहम्मद कासिम की रिवीलिंग की दरख्वास्त पर एडिशनल आईजी पंजाब को रिलीफ की हिदायत जारी की है। पंजाब असम्बली और यूनिसेफ पाकिस्तान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। सेक्रेटरी जनरल चौधरी आमिर हबीब, नुमाइंदा यूनिसेफ नील आयरन साइट ने MOU पर दस्तखत किए। बच्चों के हकूक, तालीम, सेहत और समाजी तरक्की के फ़रोग़ के लिए इश्तराक किया जाएगा। पंजाब असम्बली और यूनिसेफ पाकिस्तान के दरमियान बच्चों के हकूक, तालीम, सेहत और समाजी तरक्की के फ़रोग़ के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए। जनरल पंजाब असम्बली चौधरी आमिर हबीब और यूनिसेफ की नुमाइंदा पर नील आयरन साइट ने MOU पर दस्तखत किए। मुआहदे के तहत यूनिसेफ पंजाब असम्बली को बच्चों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए तकनीकी मुआवनत फ्राहम करेगा। बहरिया यूनिवर्सिटी में रोड सेफ्टी सेमिनार मोटरवे पुलिस की जानिब से एहतमाम किया गया। डीआईजी इमरान शाहिद और SP शहबाज आलम ने सेमिनार में शिरकत की। शुरका को थकावट के दौरान ड्राइविंग के जानलेवा नुकसान से आगाह किया गया। ज़िम्मेदाराना और दफ़ाई ड्राइविंग को हादसात की रोकथाम का वाहिद रास्ता करार दिया गया। सेमिनार में तलबा को मोटरसाइकिल चलाते वक्त सेफ्टी हेलमेट के लाजमी इस्तेमाल की तलकीन की है। दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल के बायस हादसात बारे आगाही दी गई। अफसरान को आगाही देते हुए कहना था कि गाड़ी की बरवक्त देखभाल और तेज़ रफ्तारी से इज्तनाब करें। सेमिनार के इख्तिताम पर सरगर्म तलबा और शुरका में स्वीनर्स और गिफ्ट हैम्पर्स तक़सीम किए गए। ऐवान कारकुनान तहरीक पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान मुश्तरका सकाफ़ती तारीख के उन्वान से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। कॉन्फ्रेंस में दोनों ममालिक के मुश्तरका तारीख, सकाफ़त, रवायात को उजागर किया गया। उज़्बेकिस्तान मुश्तरका सकाफती तारीख के उन्वान से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में इस बात पर जोर दिया गया कि ये रवाबित दोनों कौमों के दरमियान दोस्ती और ताउन को मजीद मजबूत बना सकते हैं। चेयरमैन मुस्लिम इंस्टीट्यूट साहबजादा सुल्तान अहमद अली का कहना है कि उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान की सकाफत बहुत मिलती है। हमारी दोनों जो गवर्नमेंट्स हैं, उज़्बेकिस्तान की और पाकिस्तान की, इन्होंने अपना जो ट्रेड वॉल्यूम है उसे बढ़ाने के लिए $2 बिलियन का टारगेट रखा है। तो उसमें मल्टीपल एक्टिविटीज़ हैं, जिसका एक सेगमेंट जो है वो हिस्ट्री और कल्चर से रिलेटेड है और एजुकेशन के साथ रिलेटेड है। स्टूडेंट एक्सचेंज कैसे हो सकता है, स्कॉलरशिप एक्सचेंज कैसे हो सकता है। बोती जल्दिश रिसर्च फ्लो इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री एंड साइंसेस का कहना है कि हुकूमत के साथ मिलकर तिजारत से दोनों ममालिक को फायदा होगा। उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद हमारा भाई कंट्री है और हमारा कल्चरल रिलेशंस, इल्मी रिलेशंस और डिप्लोमेटिक ताल्लुक़ बहुत अच्छी तरह से मजबूत हो रहा है। आजकल ताशकंद से इस्लामाबाद और लाहौर डायरेक्ट फ़्लाइट है। इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल करीब में कराची भी जाएगा। मुकर्रिरीन ने कहा, भारत में मुस्लिम सकाफती वर्सा मुश्किलात का शिकार है, इसलिए पाकिस्तान और वस्ती एशियाई रियासतों को ताउन बढ़ाना होगा। बरे सगीर की सकाफती रवायात की जड़ें वस्ती एशिया ममालिक से जुड़ी हैं, जिन्हें भारतीय रियासत और हिंदुत्व के शिद्दत पसंद नजरिए के जरिए मिटाने की कोशिश की जा रही है। फरीहा बतूल, सिटी 42। आलमी योम सियाहत पर TDCP के ज़ेर-एहतमाम लाहौर में हेरिटेज वॉक का इनेकाद किया गया। वॉक के शुरका को लाहौर को अहम तारीखी इमारतों का दौरा करवाया गया।
عالمی یوم سیاحت کی مناسبت سے منعقدہ ہیریٹیج واک کا آغاز تاریخی مزار خان بہادر کوکل تاج سے ہوا۔ شرکا کو لاہور کی قدیم عمارتوں اور ان کے ثقافتی پہلوؤں سے روشناس کروایا گیا۔ واک کے دوران سرشادی لال بلڈنگ کی تاریخی اہمیت سے آگاہ کیا گیا، جبکہ پونچھ ہاؤس میں شرکا نے بھگت سنگھ گیلری اور کورٹ روم کا معائنہ کیا۔ شرکا کا کہنا ہے کہ ہیریٹیج واک کے ذریعے انہیں لاہور کے سیاحتی ورثے اور پوشیدہ خزانوں کو جاننے کا موقع ملا ہے۔ موسٹلی جو ہمارا ٹارگیٹ ہے وہ ان پاپولر کلچرل اور ہسٹوریکل سائٹس ہیں جو کہ کافی ویلیویبل ہیں، بٹ بیکاز آف سم ریزنس وہ ان پاپولر رہ چکی ہیں۔ تو مین اس ٹور کا پرپز یہی تھا کہ ان کو ہائی لائٹ کرنا۔ سب کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے آئی تھنک، اور بہت اچھا لگا یہاں پر آ کر۔ شرکا نے کہا یہ واک دراصل ایک پیغام ہے کہ پاکستان بالخصوص پنجاب دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے ایک محفوظ اور پرکشش مقام ہے۔ ہم لوگوں کو دکھا سکیں گے کہ پنجاب کے اندر جو ہڈن سائٹس ہیں وہ بھی سیاحت کا ایک بہترین جو ہے وہ بنیادی جز جسے کہہ لیں کہ جس کو دیکھ کر آپ اپنے ورثے کو، اپنے ثقافتی جو روایات ہیں اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ حالانکہ میں لاہور میں رہتی ہوں اور میں نے یہ تینوں بھی ہسٹوریکل پلیسز جو تھیں اب تک وزٹ نہیں کی تھی، اور یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے اور آئی تھنک سب کو آ کے یہ وزٹ ضرور کرنی چاہیے۔ عالمی یوم سیاحت پر لاہور میں منعقدہ ہیریٹیج واک نہ صرف تاریخی ورثے سے آگاہی کا ذریعہ بنی، بلکہ اس نے یہ بھی ثابت کیا کہ پاکستان کا ثقافتی ورثہ دنیا کے سیاحوں کے لیے ایک منفرد کشش رکھتا ہے۔ کیمرامین خورم سندھو کے ہمراہ سمرا فاطمہ، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔